گنبدِ خضرا کی آغوش سکوں کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا سلسلہ، ایک نیا طریقہ اور کچھ نئے پارٹیسپینٹس۔ جی ہاں، ذہنی آزمائش جس کا سارا سال ہی عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ سیزن 16 تک تو ہم پروگرام کر چکے ہیں، مگر چونکہ مدنی چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، بزرگوں کا مدنی چینل، وہاں سے فرمائش آئی کہ جناب بزرگوں کا ذہنی آزمائش بھی ہونا چاہیے۔ تو آج پہلی بار بزرگوں کا ذہنی آزمائش کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ آج ہماری ٹیمز میں نوجوان طلبہ نہیں بلکہ بزرگ اسلامی بھائی ہوں گے، اور اس میں بھی مختلف شہروں کی ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوا کریں گی۔ ہفتہ وار یہ پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہر ویک آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے، اپنی جو فیڈ بیک ہے اس سے بھی ہمیں نوازنا ہے۔ یقیناً یہ پروگرام بزرگوں کا ہے، مگر نوجوان بھی ہوں، بچے بھی ہوں، گھر کے تمام افراد مل کر دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دادا جان یا کسی کے نانا جان کا مقابلہ ہو رہا ہو، اور اگر وہ آپ کے دادا یا نانا جان نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے دادا جان یا نانا جان کی عمر کے ہیں۔ تو یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے کہ سوال و جواب بھی ہوں گے، سیگمنٹس بھی ہوں گے، جلدی جواب بھی دینا ہوگا۔ تو کیا بزرگ اسلامی بھائی اپنی جوانی کے دور کو یاد کروائیں گے، یا اپنی ذہانت کا مظاہرہ کریں گے، یا جناب بالکل ہلکے سلسلے سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ میرے لیے بھی نیا ایکسپیرینس ہے، نہ جانے کیسا پروگرام ہوگا، مگر اگر آپ صاحب ساتھ ہوں گے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس آج آڈینس میں بھی بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ مگر جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہر صحیح سوال کے جواب میں آپ بآواز بلند کیا کہیں گے انشاءاللہ؟ جی، تو سبحان اللہ کی آواز آپ کی جو ہے وہ قوت اور جوانی کا اظہار بھی کرتی رہے، اور اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو ہر سبحان اللہ کہنے پر انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ ایک بار پھر کہیے زور سے سبحان اللہ۔ چلیں جناب، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ فیصلہ آباد کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ ہے، دوسری ٹیم کا تعلق کراچی سے ہے۔ دونوں ٹیموں کا تعارف بھی حاصل کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ دائیں طرف میرے فیصلہ آباد کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنی عمر بھی بتائیں گے، اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال اتاری بن محمد اشرف اتاری ہے۔ میں فیصلہ آباد میں کھلنا والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 72 عربی کا رہائشی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں اسکول ٹیچر ہوں اور میری پوسٹنگ گورنمنٹ ہائی اسکول 150 عربی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری عمر 51 یعنی 51 سال ہے۔ 51 سال عمر ہے، اور کھڑیاں والا کے قریب کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، تو آج استاد صاحب آئے ہیں تو ذرا ڈر کے بات کرنی پڑے گی۔ اب میں غلط جواب کہوں گا تو ڈانٹیں گے تو نہیں نا اسٹوڈنٹ کی طرح، مجھے کہ آپ ہی کھڑے ہو جائیں بھائی آپ مجھے کیسے غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ذہنی آزمائش کا نیا انداز ہے، اور وہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے ہوتے تھے تو ہم ان سے ذرا بات کر لیتے تھے، بزرگوں کا تو ادب بھی کرنا چاہیے، تو اب تھوڑا سا میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ شیخ اشتیاق احمد اتاری میرا نام ہے، اور میں نے ضلع یونیورسٹی سے MC کی ہے، اور میں اپنا بزنس ہی کر رہا ہوں پچھلے کافی عرصے سے۔ جی، تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 53 ایئرز ہے۔ اور آپ کون سے شہر سے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ہوں، فیصل آباد سے۔ جی سٹی سے فیصل آباد سے، سٹی فیصل آباد سے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زاہد اتاری بن مشتاق احمد، جی 56 ایئرس اولڈ، ماشاء اللہ۔ اور میں اسکول ٹیچر ہوں۔ یہ 60 JB یہ فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر میں SST بطور SST گریڈ 16 میں
अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह, 2 स्कूल टीचर आए हैं और छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, एक फैसलाबाद के बिजनेसमैन आए हैं, कमाल की टीम लगती है। अब बारी है कराची की टीम का तारुफ लेते हैं, इसी तरह अपना नाम भी बताएंगे, अपनी उम्र भी बताएंगे और क्या मसरूफियात हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हनीफ कादरी, वल्द हाशिम सांगानी। जी। उम्र मेरी 57 ईयर क्रॉस हो चुकी है। ठीक है। और बिजनेस के लिहाज से मैं इंपोर्ट अपने पर्सनल इंपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड होती है। कराची से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह, और जमशेद की रिहाइश है। माशाल्लाह। चलें जनाब, बिजनेसमैन आए हैं कराची से, दूसरे इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल खालिक अत्तारी। मेरा ताल्लुक शोबा मोहब्बत बड़ाव से है और मैंने एक बहुत अरसा शुगर मिल में जॉब की है, अभी भी जॉब में हूँ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के। अच्छा। और मेरी उम्र तकरीबन 66 साल है। 66 इयर्स, माशाल्लाह। इस वक्त तो नंबर 1 उम्र में तो हमारे अब्दुल खालिक भाई हैं। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिद अली अत्तारी नाम है मेरा, गुलशन इकबाल कराची से ताल्लुक़ है। मेरी उम्र 57 इयर्स के करीब है। माशाल्लाह। मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट में डील करता हूँ। मार्केटिंग का शोबा है मेरे पास। जी माशाल्लाह। देखें जनाब, इस उम्र में भी लोग एक्टिव हैं। 66 इयर्स की एज में जॉब भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बताया, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। माशाल्लाह जनाब, टीमें तो दोनों बड़ी मजबूत लग रही हैं, मगर ज़हनी आजमाइश एक अलग फॉर्म है, उसका एक अलग अंदाज है। देखें इस मुकाबले में इनका क्या रिजल्ट रहता है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, खानदानी रिश्ते, बुजुर्गों से ज्यादा कौन खानदानी रिश्ते जानता है, ये मजार कौन सा है और दुरुस्त कीजिए। 5 सेगमेंट पर मुश्तमिल ये ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम होगा। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, पहला सवाल करेंगे फैसलाबाद के इस्लामी भाइयों से और हर सही जवाब पर मौजूद हाजरीन बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? चलें जनाब, गुस्सा के सबब कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? फैसलाबाद वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा के सबब बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं जो आखिरत के लिए तबाहकुन हैं। जी। झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बर, कीना, आबरूरेजी, दूसरों को हकीर जानना, गाली गलौज, बेजा, मारदार वगैरह। जनाब, तकरीबन 9-10 में से आपने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। नाजरीन, गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है, ये बुजुर्गों के लिए भी मैसेज है, नौजवानों के लिए भी मैसेज है। बेजा गुस्सा नहीं करना चाहिए और आखिरत के लिए तबाहकुन बातें हैं जिनमें हसद, गीबत, चुगली, कीना, कता ताल्लुक, झूठ, आबरू रेजी, दूसरे को हकीर जानना, गाली गलोच और तकब्बुर। आप सोचे कितनी बुराइयां हैं, पीछे उसके गुस्सा भी हो सकता है। अल्लाह हमें गुस्से की दबाकारियों से बचाए। फैसलाबाद वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जनाब, कराची वालों से सवाल है, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करने के बारे में नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत करेगा तो बुढ़ापे में उसकी अल्लाह ताला एक शख्स मुकर्रर कर देगा जो उसकी इज्जत करेगा। अच्छा, आपने जो जवाब दिया है ये भी किसी न किसी रिवायत में होगा, मगर जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें जवाब कुछ और है। हमारी मजलिस फैसला करेगी। मैं जवाब पहले बता देता हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। तो जनाब, इनका जवाब तो दुरुस्त नहीं मानेंगे हम। वैसे तो आपने जो जवाब दिया वाकई ऐसा ही है कि बूढ़े की इज्जत करने के हवाले से और भी बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन जो आपको सिलेबस में दिया गया था वो आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया है। अब बारी फैसलाबाद वालों से है, चुप रहने के मुतालिक मुहावरा सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चुप 100 को हराए। एक चुप 100 को हराए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बुजुर्ग नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर हुए, लोगों ने उन्हें जगह देने में देर कर दी, तो नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़े शख्स सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो उन्हें
انہیں لوگوں نے جگہ دینے میں دیر کر دی، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کی عزت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، عزت نہ کرے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ناظرین، یہ زبردست حدیث پاک ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ لوگ بڑوں کے ساتھ بعض اوقات بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہے ہوتے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کدھر جائیں گے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در سے دور کر دیا؟ تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے، کراچی والوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ نرمی کے متعلق حدیث پاک سنائیں۔ فیصلہ آباد والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر لیتی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں بھی، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں خوبصورت سوال تیار کیے گئے ہیں جن میں بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت زبردست درس ہے۔ غصے کی تعریف بتائیں، غصہ ایکچولی کہتے کس کو ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے کہ جو دوسروں سے بدلہ لینے اور ان کو دفع کرنے یعنی دور کرنے پر ہو۔ جی، غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دور کرنے پر ابھارے۔ اللہ پاک ہمیں غصے کی تباہ کاری اور ایسے غصے سے بچائے جو گناہ پر جا کر ختم ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خاموش رہنے کی فضیلت میں حدیث پاک سنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ناظرین، کئی بار ایسا ہوا ہوگا آپ بول کر تو پچھتائے ہوں گے مگر چپ رہ کر آپ شاید کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے۔ چپ رہنے سے بہت سارے معاملات سے نجات مل جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غصے کی عادت ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ غصے کو ختم کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ کبھی کبھار چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتا رہیں۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ سب یاد کر لیں انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ طبیعت میں نرمی آ جائے گی، غصے کی عادت کم ہو جائے گی۔ مل کر پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ وظیفہ اپنا لیجئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حاضرین، اب سوال وہ ہے جس میں آپشن ہے۔ اگر آپ آپشن لیے بغیر جواب دے دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی تعداد بتائیں۔ آپشن لیں گے یا مشورہ کر لیں کیونکہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ 4 جناب، آپشن نہیں لیا انہوں نے، 3 آپشن تھے، 4، 3 یا 5۔ یہ 3 آپشن تھے۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یار ہمارا جواب درست ہے، لیکن اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر کوئی نمبر نہیں ملتا ہے۔ آپ نے 4 کہا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ فیصلہ آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ آپشن لیں گے یا جواب دیں گے؟ مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ 63 سال۔ 63 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، بزرگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، تیاری مضبوط لگتی ہے، مقابلہ آگے تک جانے کی امید ہے۔ ویسے میں اگر آپ بزرگوں سے یہ پوچھوں، آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہیں کہ تیاری میں کیا کسی بیٹے نے، بیٹی نے یا پوتے پوتی نے کوئی مدد کروائی، دہرائی کیسے کی آپ نے؟ تھوڑا فیصلہ آباد والے بتائیں، کراچی والے بتائیں۔ جی ٹیچر صاحب۔ ہاں جی، ماشاءاللہ میں اپنی بیٹی سے میں سناتا رہا ہوں۔ اچھا، ان کو سناتے رہے سبق، یعنی ٹیچر صاحب بچی کو سبق سنا رہے ہیں۔ اچھا چلے تو اچھا ہو، گھر میں ماحول اچھا، تیاری مطلب گھر والے دعا کر رہے ہیں پیچھے، آپ کو تیار کر کے بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی حاج صاحب، ایک معلومات لینی ہے، یہ جو بھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا نمبر بھی ملے گا؟ نہیں، یہ بغیر نمبر کا سوال ہے، نمبر تو پھر ان کو دینا چاہیے جنہوں نے تیاری کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو ان کو معلوم کر رہا ہوں کہ تیاری کس نے کروائی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ بھی ایک علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ بزرگ جب آ رہے ہیں تو ان کے بچے بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے، کسی کے پوتے پوتیاں ایکسائٹیڈ ہوں گے، کیا دادا جان جا رہے ہیں یا نانا جان جا رہے ہیں، ابو جا رہے ہیں، تو اٹ از انشاءاللہ جب یہ آن ایئر ہوگا تو سب گھر والے انشاءاللہ امید ہے مل کر دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بتائیں گے کس نے تیاری کروائی؟ جی 66 سال والے بزرگ بتائیں۔
मैं कराची से बाहर रहता हूँ। अच्छा। शुगर मिल के अंदर। अच्छा अच्छा। इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मेरा एक इलेक्ट्रिशियन है, वो मेरी तैयारी कराता है। अरे वाह भाई वाह। तो वो देखते हैं ज़हनी आजमाइश, उनको पता है, आपने उनको सिलेबस दिया था? जी हाँ बताया था। अरे वाह भाई वाह। चलें देखें, और इस्लामी भाई भी तैयारी करवा रहे हैं, तो बहरहाल देखें, अब आपने लाज रखनी है, क्योंकि वो भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि भाई आपने आगे बढ़ना है, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। पहला सेगमेंट खत्म हुआ है, जिसमें आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। कर दे उस दिन के रोशन होने में मेरे लिए कोई बरकत नहीं। चलें, आज हमारे स्टूडियो में माशाल्लाह हमारे हाजरीन भी आए हैं, तो चलें इनसे भी सवाल करते हैं। कराची के 8 नंबर है, फैसलाबाद 2 नंबर से आगे 10 नंबर पर। तो गुलाम शबीर भाई इंशाल्लाह सवालात की तरफ चलेंगे और इस्लामी भाई से सवाल भी करें और इन्हें कुछ तहफ़ भी तकसीम करें। जी जी। मेरा पहला सवाल है, ग़ज़वा बदर किस दिन हुआ, ये कौन बताएगा? ग़ज़वा बदर, हाँ बड़ा तारीख बताना नहीं, हाथ खड़ा करना है। तारीख बतानी है। तारीख बताएंगे जी। दिन बताएंगे, दिन किस दिन हुआ, तारीख नहीं दिन बताएंगे। हाँ 1 मिनट, मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां तारी। आपकी उम्र कितनी है? 65 है तकरीबन। माशाल्लाह, आवाज तो बड़ी दबंग है आपकी। ग़ज़वा बदर जुमे के दिन वाक़िफ़ है। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तारीख भी किसी से पूछ लें, वो भी बड़ी यादगार तारीख है। ग़ज़वा बदर की तारीख ये बुजुर्ग बताना चाह रहे थे जी, इनसे पूछें, इनको भी तोहफा दें जी। तोहफा लेना देना इंशाल्लाह, कोई भी चीज लेंगे देंगे सीधे हाथ से इंशाल्लाह। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। 17 रमजान मुबारक। 17 रमजानुल मुबारक को जवाब इनका भी दुरुस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह इनका जवाब भी दुरुस्त है। इनको तोहफा दिया जाता है इस्लामी महीनों के फजाइल। माशाल्लाह। अच्छा, ग़ज़वा बदर के बारे में एक और सवाल बुजुर्गों से करते हैं। चले, बात छिड़ गई है तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये एक ऐसा वाक़या है जो जब सुनते हैं सर फखर से बुलंद हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि अल्लाह ने कैसे 313 सहाबा इकराम की मदद की और फरिश्तों की फौज भेजी गई थी। ग़ज़वा बदर वाले दिन को, कुछ दिन को नाम दिया गया। इस दिन, इस यौम का एक खूबसूरत नाम है। जी गुलाम शरीफ भाई पूछें, देखें कोई भाई हाथ उठा रहे हैं, उनसे पूछें। जी यौम, इस ग़ज़वा बदर को क्या यौम कहा जाता है? जी इनसे मालूम करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद आरिफ कादरी। माशाल्लाह। जी। यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, ये एक्चुअली डिसाइडिंग डे था। फुरकान कहते फर्क कर दिया। इस दिन ने कुफ्र और बातिल के दरमियान और इस्लाम के दरमियान जो है एक ऐसा फर्क डाल दिया, एक ऐसी हैबत उनके दिलों में डाल दी कि जान लिया कुफार ने कि मुसलमान जब ईमान वाले हों और डट जाएं, अल्लाह पर भरोसा करें, तो फिर इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, चाहे असला ज्यादा हो, चाहे फौज ज्यादा हो। फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि सुभान अल्लाह, यौमुल फुरकान करार दिया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने माशाअल्लाह। इनको गुलाफ़े काबा के धागे जो है तोहफे में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। नाजरीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। 5-5 अशार पूछने हैं दोनों टीमों से। क्या बुजुर्ग इस्लामी भाई भी नात के अशार याद करते हैं और कैसे याद करते हैं ये अब पता चलेगा। फैसलाबाद वालों से सुनेंगे, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुंचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक। जी कराची वालों से सवाल है। गिरा दे शौक मुझको तड़पाकर, गिरा दे काश मुझको
तड़पा कर मदीने में। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं पहुंचूं कुएं जाना पर गिरे बौछाक सीना चाक। मैं पहुंचूं कुएं जाना पर गिरे बौछाक सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। मैं यहाँ बुजुर्गों से एक अर्ज करूंगा कि ज़हनी आजमाइश की एक रीत है और वो फायदा भी देती है कि टीम आपस में मशवरा करके जवाब दे। आप बुजुर्ग हैं, आप घर के बड़े हैं, आप कहते हैं हमें मशवरे की क्या हाजत है, लेकिन 3 बड़े होंगे तो फिर लीड कौन करेगा? तो आप आपस में मशवरा करेंगे तो आपकी टीम आगे जाएगी। बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। जनाब, आंसू छलक पड़े और बेताब हो गया दिल। जिस वक्त मैंने देखा मीठे नबी का हाय रोज़ा। हाय, जिस वक्त मैंने देखा मीठे नबी का रोजा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर। होगी शफात उसकी जिसने मदीने आके ख्वा एक नजर देखा मीठे नबी का। हाय हाय, खा एक नजर भी देखा। ये उस हदीस की तरफ इशारा है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो क्या लिखा अमीर अहले सुन्नत ने? होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर खा एक नजर भी देखा मीठे नबी का रोजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर। होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर। हाँ एक नजर भी देखा मीठे नबी का रोजा। हाँ एक नजर भी देखा मीठे नबी का रोजा। माशाअल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए मेशर तुम्हारा बंदा अजाब में। क्या बात है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर साहब भी तैयारी करके आए हैं। बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आए हाय, बड़ा प्यारा शेर है आला हजरत का। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह। क्या बात है, इस शेर को समझिए नाजरीन। हम नबी पाक के दर के भिकारी हैं और उनके भिकारी हैं कि जिनकी आदत क्या है? और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा दीन ओ ईमान फरिश्ते जो पूछें। क्या बात है।
तुम्हारी ही जानब इशारा करूं। हाय हाय आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो सब मिलकर फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं। कराची वाले सवाल है, तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे। कहा अपना दामन पसारा करूं मैं, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है नाजरीन, यहाँ की टीम की तैयारी तो मजबूत है। अब बारी है यहाँ मौजूद हाजरीन की। यहाँ भी बुजुर्ग इस्लामी भाई मौजूद हैं, अब उनसे शेर सुनते हैं, देखें कौन सही जवाब देता है। आला हजरत का शेर सुना दीजिए, और शेर ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। कौन सुनाएंगे? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मोहम्मद अनवर अत्तारी। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। शेर मिलकर पढ़ेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो भी सगात मदीना का तोहफा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, और अब एक बार फिर चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है कराची वालों के, 20 नंबर है फैसलाबाद वालों के। 2 नंबर से फैसलाबाद वाले आगे हैं, मगर अभी मुकाबला बाकी है। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जी खानदानी रिश्ते। अब फैसलाबाद वालों सवाल करेंगे। ये किसी के लिए सवाल है, आपके लिए भी हो सकता है, कि आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है। दोबारा सुन लें, आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है। खाला या माँ। क्या बात है जी, वो माँ जी भी हो सकती हैं, खाला जी भी हो सकती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों से सवाल है, आपके मामू के वालिद की बेटी के शौहर का आपसे क्या रिश्ता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, गौर से देख लें। आपके मामू के वालिद की बेटी के शौहर का आपसे क्या रिश्ता है। खालू या वालिद। जनाब बुजुर्गों को रिश्ता नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, वालिद या खालू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर फैसलाबाद वालों की है। आपके ताया के बेटे की वालिदा के ससुर का आपसे क्या रिश्ता है। मैं रिपीट करता हूं, आपके ताया के बेटे की वालिदा के ससुर का आपसे क्या रिश्ता है। शिफा के रास्ते
दादा होंगे। जी जनाब, दादा जान हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, गलती नहीं कर रहे भाई, कराची वालों की बारी है। माशाल्लाह। आपकी अहलिया की नानी की बेटी के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? अगेन रिपीट कर देता हूं। आपकी अहलिया की नानी की बेटी के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? बना इसको जहां के बच्चों का मामू या साला। बच्चों का मामू, जिसको नॉर्मली लोग साला कहते हैं, अदब के साथ बच्चों का मामू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, कौन कहता है बुजुर्गों को जवाब देना नहीं आता? तैयारी करके आए हैं और जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। अब 2 सेगमेंट हमारे बाकी हैं नाजरीन, हम उस 2 सेगमेंट से मुकाबले को शतांक पर ले जाएंगे, मगर अब वक्त हुआ है हम इंशाल्लाह अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई भी हमारे साथ आएंगे, हम एक मुख्तसर नातख्वानी करेंगे और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। आइए तमाम बुजुर्ग तशरीफ ले आए जी, इंशाल्लाह नेक अमाल का जायजा लेते हैं। जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन हो मोबाइल एप्लीकेशन पर कर लें, वरना जिनके पास रिसाले हों तो अपने रिसाले पर नेक अमाल का जायजा लेंगे जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आज के नेक अमाल का जायजा लेते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की। नंबर 2, 5 नमाजें बाद जमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी। नंबर 4, रात में सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली। नंबर 5, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। नंबर 6, कंजुल ईमान से 3 आयात, सिरातुल जनान से 2 सफ़हात, तर्जुमा और तफसीर सुन या पढ़ ली। नंबर 7, शजरे के औरात पढ़े। नंबर 8, 313 बार दुरूद पाक पढ़े। नंबर 9, आँखों को गुनाहों से बचाया। नंबर 10, कानों को गुनाहों से बचाया। नंबर 11, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी। नंबर 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। नंबर 13, अज़ान व अक़ामत का जवाब दिया। नंबर 14, गुस्से का इलाज किया। नंबर 15, अपना जायज़ा किया। नंबर 16, अपने निगरान की अताअत की। नंबर 17, आप और जी कहकर बात की। नंबर 18, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया। नंबर 19, इशा की जमात से 2 घंटा घर पहुंच गए। नंबर 20, 2 घंटे दीनी कामों पे सर्फ किए। नंबर 21, फजर के लिए जगाया। नंबर 22, दूसरों के घरों में झांकने से बचे। नंबर 23, घर दर्स हुआ। नंबर 24, मस्जिद दर्स दिया या सुना। नंबर 25, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। नंबर 26, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल किया। नंबर 27, एक मुश्त दाढ़ी है। नंबर 28, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की। नंबर 29, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। नंबर 30, मुसलमानों को सलाम किया। नंबर 31, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। नंबर 32, ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज से पहले अदा की। नंबर 33, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी। नंबर 34, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी। नंबर 35, असर या इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी। नंबर 36, दीनी कामों में एक दीनी काम की तरगीब दिलाई। नंबर 37, दूसरों से मांग कर चीज़ तो इस्तेमाल नहीं की। नंबर 38, झूठ गीबत चुगली से बचे। नंबर 39, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा। नंबर 40, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की। नंबर 41, वक्त पर कर्ज अदा किया। नंबर 42, आइज़ी के लिए ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे। नंबर 43, सफाई और सलीके का ख्याल रखा। नंबर 44, मुसलमानों के अयूब के पर्दा पोशी की। नंबर 45, बाद फजर तफसीर सुनाने के हल्के में शिरकत की। नंबर 46, जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। नंबर 47, चौक दर्स दिया या सुना। नंबर 48, वालिदैन और पीर व मुर्शिद को इसाले सवाब किया। नंबर 49, इसराफ से बचे। नंबर 50, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। नंबर 51, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया। नंबर 52, ज़बान के गुनाहों से बचे। नंबर 53, फजूल बातों से बचे। नंबर 54, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे। नंबर 55, अमामा शरीफ बांधा। और नंबर 56, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जरा अब नेक अमाल का जायजा भी हो गया, अब वक्त है नाज शरीफ सुनने का। आइए मिलकर नाज शरीफ में शामिल होते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 اور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہے بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تیرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں
बसर बनते हैं सैयारों के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हम सबको सैयदी आला हजरत का इश्क रसूल का फैज़ान नसीब फरमाया और हमें भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इसका मक्ता बड़ा कमाल का है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, हमारा प्यार हमारी मोहब्बत नबी पाक से है, हमें नबियों से प्यार है, हमें सहाबा से प्यार है, हमें अहले बैत से प्यार है, हमें औलिया से प्यार है। तो ऐसे आका हैं हमारे, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो फिर बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह करीम इन सब की सच्ची गुलामी अता फरमाए और उनके पीछे पीछे हमें जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए। नाज़रीन, बुजुर्गों का ज़हनी आजमाइश जारी है, मुकाबला बड़ा करीब करीब है और आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जाती है। आइए, दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें और हम एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाइए। जनाब 22 नंबर हैं कराची वालों के और 24 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट अब हम देखने जाएंगे और उसमें मज़ारात औलिया की ज़ियारत भी होगी, मगर इसमें होगा ये कि आपने बहुत तवज्जो के साथ मज़ारात औलिया देखने और फिर हम आपसे पूछेंगे ये मज़ार कौन सा है। बगैर किसी इशारे के आपने बता दिया तो 5 नंबर मिलेंगे और जैसे जैसे इशारे आप लेते जाएंगे नंबर आपके कम होते जाएंगे। तो गौर से आपने देखना है मुकद्दस मकाम और तवज्जो से देखना है। जी दिखाइए फैसलाबाद वालों को। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ, जनाब हजरत लैस बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ, हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ, ईमान का लिबास, हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और समरा, हजरत आयशा बिनते इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हा, दरियाए नील, ये भी एक बड़ा तारीखी दरिया है मिस्र में, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार। क्या बात है जनाब। जनाब बहुत तेजी से कुछ मुकद्दस मकाम दिखाए गए हैं, अब गौर करना है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। वो जल्दी जवाब मत दीजिएगा जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि गलत जवाब देंगे तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। फैसलाबाद वालों को दिखाइए जी। पहला इशारा, आप कोई भी बॉक्स खुलवा सकते हैं और पहले इशारे पे जवाब दे देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आसान फरमा देगा और उसे वहां से रिस्क अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। नंबर 6। नंबर 6 खोलिए जनाब, पूरा स्क्रीन पे खोलिए। मुझे लगता है मैं तो पहुंच गया हूं, लेकिन मैं भी हो सकता है गलत हूं। नादरीन भी गौर करें ना, यहाँ मौजूद हाजरीन सोचें कि क्या हमारा IQ लेवल ऐसा है कि हमने सही देखा। मदरी चल के नाजरीन भी गौर करें, बुजुर्गों का भी इम्तिहान है आज। 5 नंबर लेने हैं, लेकिन हर इशारे के लिए आपके पास 20 सेकंड है और 5 सेकंड अब बाकी रह गए। नंबर 7। नंबर 7 खोलें जनाब। अब सही जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे इनको। 7 नंबर को खोलते हैं। बहुत वाज़ेह हो गया ये मज़ार शरीफ। 25 सेकंड है आपके पास, जवाब दे देंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। साफ और शफाफ देखे हम शिफा के रास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपसे मेरे हिसाब से तो गलती हो गई है। चलें एक इस्लाम पे हाथ उठा रहे हैं, देखें सही साहब, इन्होंने सही जवाब पूछा है कि जी माइक दें जी। शबीर भाई जरा पूछें, देखें भाई इनको, इन्होंने सही पहुंचा है। इनको तो नंबर नहीं मिलेंगे, इनका तो कुछ भी नहीं जाएगा जो भी जवाब देंगे। अगर गलत जवाब हो तो इनको मदनी काफिले में सफर करवाइएगा। मोहम्मद अली सईदी जी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला, इनको जल्दी से ले जाए मदनी काफिले में, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। चलें अगले इस्लाम पे को चेक करें भाई, चलें। उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला। चलें 2 हो गए मदनी काफिले के मुसाफिर। चलें अब मेरा ख्याल है पूरा मदनी काफिला ही तैयार होगा। ये हालांकि मैं इशारा दूं तो अभी शायद पहुंच जाएंगे आप, और अगर मैं हो सकता है मैं भी गलत ना निकलूं, क्योंकि मैंने भी ये 2 ही विंडोज देखी हैं, बट आई एम डेड श्योर कि ये मज़ार किसका है जी। चलें अब नौजवान से पूछ लें भाई, बुजुर्ग तो नहीं बता पा रहे।
इमाम हजर अस्कलानी। चलो 3 हो गए मदनी काफिले के मुसाफिर। ये पहला सबसे पहली जो तस्वीर दिखाई गई थी, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला का मज़ार है। अब देखें मेरी भी ये आजमाइश है जी जनाब। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला साहिब शरहुस सुदूर, अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। और जब मैं मिस्र में हाजिर हुआ इनके मज़ार पर, तो चूंकि हम जब मज़ार पर जाते थे तो इनके बारे में पढ़ते थे ना कि साहिब मज़ार के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। आप यकीन करें मैं इतना इनसे मुतासिर हुआ कि जब इनके हालात ज़िंदगी पढ़े और अल्लाह की रहमत से इनके मज़ार पर हाज़िरी का शरफ भी मिला, और इनके कदमों में खड़े होकर हमने इनके मज़ार के इनके बारे में, इनके जो भी फ़ज़ाइल थे, जो इनके कमालात थे, जो इनकी करामात थी, हमने बयान की। तो अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहें तो ये यूट्यूब पर मौजूद है, राज़ों की सरज़मीन। ये मिस्र के अंदर हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। आइए नाज़रीन देखते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर की गई कुछ गुफ्तगू इनके बारे में और इनके मज़ार के मज़ीद मनासिर। यहाँ लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, बहुत प्यार से मिल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल, अना मिनल पाकिस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें तंसौना फिर दुआ सल्ले नमाज खमसा, हाँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह ला तंसौना फिर दुआ इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी में दुनिया भर में धूम मचाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाड़ी भी मौजूद थी, मगर इस्लाम भाई ने बताया कि थोड़ा ही दूर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। तो क्या बात है, इतनी अजीम हस्ती हैं, जब भी शरह सुदूर पढ़ी, इनकी किताबें पढ़ी, इनकी रिवायतें पढ़ते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो बुज़ुर्गों की बारगाह में मैंने सोचा एक तो पैदल भी जाएं, और दूसरा एक और मशवरा है कि पैदल चलने का बहाना ढूंढा करें। ये गाड़ियों में सफ़र कर करके जो ना हमने अपनी सेहत ख़राब कर दी है, जितना चलेंगे उतना सेहत बेहतर होगी। है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक अजीम हस्ती, बहुत ही मुबारक नाम, 9वीं सदी के मुजद्दिद, हाफिजुल हदीस, इमाम अजल, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रोज़ा अनवर के पास हम हाजिर हैं। क्या कमाल की हस्ती हैं। एक हस्ती को कितने अल्लाह ताला ने कमालात से नवाजा था। जब इनके बारे में आप पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और सच्ची बात है कि हमारी अपनी इल्म दीन से दूरी, हमारी अपनी ज़िंदगी की जो गफलतें हैं वो फिर इंसान को शर्मिंदा करती हैं कि इसी दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने एक ही ज़िंदगी में वो काम कर दिखाया कि आज सदियाँ गुजरने के बाद भी न सिर्फ अवाम बल्कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, हदीस के तलबा, बल्कि हदीस के माहिरीन भी इनकी बारगाह में सर झुकाते नजर आते हैं। है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। जनाब अब बारी है कराची वालों की। कराची वालों को भी कुछ मज़ारात और कुछ मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे। आइए देखते हैं ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई, हजरत अमर बिन आस, वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान। हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, शाहरुख ने आलम, हजरत लैस बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयदा आयशा बिनते इमाम जाफर सादिक, जनाब दरियाए नील मिस्र में हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ। अब कराची वालों के पास मौका है, मुकाबले में वापस भी आ सकते हैं बल्कि आगे भी बढ़ सकते हैं। फैसलाबाद वालों ने गलती की कि और नंबर इशारे ले सकते थे, कंफर्म करके देते जवाब तो अच्छा था। बहरहाल कराची वालों की बारी है। कौन सा नंबर खुलवाएंगे? 12 नंबर। 12 नंबर जनाब। कोना पकड़ा है, कोने में कोई राज लगता है जनाब। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो रिस्क मत लीजिएगा, बॉक्स और खुलवा लीजिएगा। 5 नंबर का ये सेगमेंट है, कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा। हदीस पाक में आता है अल्लाह अज़्ज़ व जल की कोई इबादत ऐसी नहीं की गई जो दीन की समझ बूझ हासिल करने से अफजल। जल्दी कीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया, वरना ये आपका सवाल नंबर बताइए। 6 नंबर खोलिए। 25 सेकंड के अंदर ही आपने नंबर कहना है, वरना वो सवाल आपका खत्म हो जाएगा। जी 6 नंबर खुल गया है। अब फिर 25 सेकंड है आपके पास, गौर कीजिए, चाहे तो एक और इशारा लीजिएगा।
गलती मत कीजिएगा, मशवरा जरूर कीजिएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा गलती पर। 10 नंबर खोलें। 10 नंबर खोलें जनाब। उस दिन के रोशन अब अगर जवाब देंगे तो इन्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। हाजरीन में से कोई पहुंचे हैं? चले, हाजरीन की बारी भी आएगी अगर ये जवाब नहीं दे सकेंगे तो। हमें ये बताना है कि ये तस्वीर कौन सी है। बॉक्सेस खुलवाते जाइए और 5 सेकंड रह गए हैं, खुलवाएं। अगर नंबर बना ये सवाल भी जाया हो जाएगा। 7 नंबर खोलें जनाब। अब अगर सही जवाब देंगे तो इन्हें 2 नंबर मिलेंगे। दरख्त भी आ गया है, कुछ लगता है वो गौर से नहीं देख पाए, याद नहीं कर पाए हैं। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। हदीस पाक का मफहूम है, चाहे तो कोई मज़ार शरीफ का या मुकद्दस मकाम का नाम ले लें या मजीद खुलवा लें। शर्म हया, क्योंकि अभी भी 2 इशारे ले सकते हैं आप। इल्म है। 5 नंबर खोलें। 5 नंबर को खोलें जनाब। 5 भी खुल गया है। अब 1 इशारा बाकी है और 1 नंबर मिलेगा अगर आप जवाब देंगे तो। कोई नाम याद आ रहा है? कोई मज़ार शरीफ याद आ रहा है? इसकी विंडो खुलवाइए। कौन से नंबर की? जल्दी करें। 4 नंबर खुलवाइए। 4 नंबर खुलवा दें जनाब। आसमान नजर आएगा मुझे लगता है वहां पर। नहीं, कुछ और नजर आ रहा है। चले भाई, अब आप 5 आपने इशारे ले लिए हैं। अब आपका सिर्फ 20 सेकंड है। तस्वीर दिखाइए, या तो नाम ले लें या फिर हम आपको बताएंगे। अब अगर आप नाम ले लेंगे इस जगह का तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आप खिड़की नहीं खुलवा सकते, अब आपको नाम लेना है। ये विंडो कुछ बड़ी हो सकती है? नहीं, अब जितनी है उतनी है हजरत। वक्त आपका खत्म हो गया है। कराची वालों ने 5 इशारे लिए। है कोई यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जवाब दे और कुछ तोहफा लेकर जाए? चलें भाई, देखें गुलाम शबीर भाई हमारे हाजरीन पहुंचे कि नहीं। हो सकता है घर पे बैठे नाजरीन भी पहुंच गए हों। बुजुर्गों में तो कोई नहीं पहुंचा है जनाब। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी। ये मज़ार हज़रत इमाम शाफ़ई है। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा था इमाम शाफ़ई का मज़ार है। क्या दुरुस्त है? बताइए जनाब। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अगर 5 इशारों में किसी भी जगह टाइम जवाब दे देते तो कराची वालों को नंबर मिलते। क्या तोहफा देंगे इनको? 12 दीनी कामों के मुतल्लिक किताब जो है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आइए इमाम शाफ़ई, सुभान अल्लाह, करोड़ों शाफ़ियों के पेशवा इमाम शाफ़ई के रोज़े की ज़ियारत करते हैं और उनके बारे में उन्हीं के कदमों में से कुछ जानते हैं। रोज़ों की सरज़मीं है सहाबा औलिया की सरज़मीं। कायरो जिसको हम कहते हैं, एक हसीन इम्तिजाज है जदीद और पुरानी इमारतों का। तहजीब भी दोनों नज़र आती हैं। यहाँ मजहबी लोग भी बड़े शानदार नज़र आते हैं। पर्दा भी इस्लामी बहनों में नज़र आता है मगर मॉडर्नाइज भी है। यानी जो क्या कहा जा सकता है कि 2 तरह की हमें यहाँ पर तहजीब मिलती हैं, 2 तरह के लोग मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि यहाँ पर फिर वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, फिर ये इल्मो अदब का मरकज़ बन जाए, फिर यहाँ पर अमल की बहारें आ जाएँ इंशाअल्लाह। उलमाए किराम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के शुयूख भी कोशिश कर रहे हैं। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह कि सुन्नतों का दौरा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह करोड़ों शाफियों के पेशवा 150 सिने हिजरी में या तो मिना में पैदा हुए या आपके बारे में आता है यमन में पैदा हुए। गोया आप तबा ताबई थे, ताबईन की दीदार करने की सआदत आपको मिली। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई का ताल्लुक खानदान कुरैश से है। हजरत अब्द मुनाफ पर जाकर इनका नसबनामा नबी पाक अलैहिस्सलाम के नसबनामे से मिल जाता है। आप अपने जद्दे आला हजरत शाफे बिन साइब रहमतुल्लाहि तआला की निस्बत से शाफ़ई कहलाए। इमाम शाफ़ई ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक खत्म कर लिया। 10 साल की उम्र में मौता इमाम मालिक हिफ्ज कर लिया। अल्लाहु अकबर। रोज़ों की सरज़मीं, रोज़ों की सरज़मीं। फैसला
फैसला आबाद वालों से एक और सवाल करेंगे। एक बार फिर आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कुछ तो नंबर लेके जाएं इस सेगमेंट में। ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, दिखाइए फैसला आबाद वालों को, गौर से देखें। ये उन्हीं में से एक पिक्चर है जो आपको दिखाए जा चुके हैं। नंबर 7 नंबर खोलें भाई। ओ, ये तो मेरा ख्याल आसान हो गया है। 5 नंबर का मौका है, लेकिन गलती मत कीजिएगा, चाहे तो मशवरा कर लें। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी। क्या बात है, क्या ये दाता गंज बख्श का मज़ार मुबारक है? माशाल्लाह 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिला वालों की बारी है। अब कराची वालों ने लंबी छलांग लगानी होगी अगर मुकाबले में वापस आना है। जी, जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे, उस दिन के रोशन होने में मेरे लिए जी क्या कराची वाले पहचान पाएंगे? पहले तो बॉक्स खुलवाइए। कौन सा बॉक्स खुलवाना है, कौन सा इशारा लेना है? 12 नंबर। फिर 12 नंबर। ये कराची वालों ने कोना पकड़ा हुआ है, कॉर्नर प्लॉट कराची वाले ले रहे हैं। अरे ये तो फिर उसी तरह का कोई बॉक्स आ गया, सेम तो नहीं आ गया भाई? ये कुछ गौर कर ले तो पहुंच सकते हैं। मशहूर जगह है, हमारे इस्लाम में तो अभी से हाथ उठाना शुरू कर दिए हैं। चाहे तो एक इशारा और ले लें, कंफर्म कीजिएगा, वरना 0 नंबर मिल जाएगा। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए। 7 नंबर। ईमान का लिबास। अच्छा मशवरा था ये। अब उसके बाद कंफर्म करके जवाब दें। और समरा दरियाए नील। दरियाए नील जवाब दुरुस्त देकर 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। दरियाए नील, वो दरिया जिसमें हजरत मूसा को रास्ता दिया, और वो दरियाए नील जिसमें फिरौन अपने साथियों के साथ गर्क हुआ। नाजरीन आइए, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब फैसलाबाद वाले 3 नंबर से आगे हैं, कराची वाले 3 नंबर से पीछे हैं। आखिरी सेगमेंट है, आखिरी मौका है। क्या कराची वाले इस लीड को कवर करेंगे या फैसलाबाद वाले मुकाबले में आगे बढ़ जाएंगे? आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। फैसलाबाद वालों को एक लफ्ज दिखाया जाएगा। इनके पास 25 सेकंड होंगे जिसमें इन्होंने इस लफ्ज को दुरुस्त करना है। ये किसी का नाम भी हो सकता है, कोई किताब का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का नाम भी हो सकता है। मुश्किल सेगमेंट है, कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। बारी है फैसलाबाद वालों की, दिखाइए जनाब। कोई इबादत ऐसी नहीं की गई जो दीन की समझ बूझ हासिल करने से अफजल हो। कर ले ज़हनी आज़माइश को कबूले बारगाह, कर ले ज़हनी आज़माइश को कबूले बारगाह, इल्म का और कीजिए नाजरीन, बना इसको टाइम खत्म हो रहा है जनाब, आपका वक्त पूरा हो गया है। बताइए ये क्या था? वैसे करनी बड़ा मशहूर नाम था, मगर 25 सेकंड में दुरुस्त करना आसान नहीं है जनाब। फैसलाबाद वालों नंबर नहीं ले सके। क्या कराची वाले सही जवाब देकर मुकाबले में वापस आएंगे? दिखाइए कराची वालों को। याद रखिएगा ओनली 25 सेकंड्स, 25 सेकंड है जिसमें आपने ये दुरुस्त करना है। कुछ मुश्किल है, कुछ बड़ा है। जिस दिन मैं ऐसे इल्म में इजाफा न कर सकूं, एक मकतबतुल मदीना की किताब है, उस दिन के रोशन होने में मेरे लिए कोई बरकत नहीं। जनाब इतना आसान नहीं है जी। वक्त आपका पूरा हो गया है, आप जवाब नहीं दे सके। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जवाब देना चाहें, आपको नंबर नहीं मिलेंगे ना, तो चले यहाँ वालों को तोहफा मिल जाएगा। चले बताएं जरा। बुजुर्ग इस्लामी भाइयों में कोई जवाब? ये जवाब हमारे इस्लामी भाइयों को देने दें। माशाअल्लाह। चले जनाब देखें जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। हसन रजा अत्तारी, फैजान रमजान,
کیا یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان رمضان ہے؟ جناب حسن رضا بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. کراچی کی ٹیم جواب نہیں دے سکی ہے, ان کو تحفہ پیش کریں جناب. اب باری فیصلہ آباد والوں کی ہے. آخری سوال ہے ذہنی آزمائش بزرگوں کے پہلے ایپیسوڈ کا. بتائیے کیا فیصلہ آباد والوں کو جملہ درست کرنے آتا ہے؟ جی, یہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے, میں نے اشارہ آپ کو دے دیا ہے, کوشش کریں کہ پہنچے وہاں پر. دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے, دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا. جلدی کریں. عبداللہ بن عباس. اللہ, بہت قریب پہنچ گئے تھے آپ. یہ عبداللہ ابن عباس نہیں ہیں. بتائیے کیا نام ہے یہ؟ ماشاءاللہ, اچھی کوشش تھی. عبداللہ بن مسعود جواب تھا لیکن وہ نہیں دے سکے. اب کراچی والوں کی باری ہے. جی, بڑے مشہور صاحب یہ رسول ہیں جناب. کراچی والوں, ہر عاشق رسول ان سے محبت کرتا ہے. جلدی کریں, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اللہ, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جناب. بزرگوں نے ہاتھ اٹھا دیا بھائی, یہاں بزرگ پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹیم والے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ پریشر ہوتا ہے. بعد میں گھر جا کے جب یہ سلسلہ دیکھیں گے تو خود کہیں گے یار ہم کیسے نہیں پہنچ سکے. لیکن جناب یہاں آ کر پروگرام کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. منچ پر آ کر جواب دینا. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال حبشی. جی جناب, حضرت بلال حبشی یہ نام تھا. جو نہیں بتا سکے کراچی والے, تحفہ ہمارے بھائی کو جائے گا. ناظرین, یہ آج کا ذہنی آزمائش مکمل ہوا اور فیصلہ آباد کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے. مگر یاد رہے, ہم بزرگ اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح مایوس نہیں کریں گے. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ایک موقع ملے گا. تیاری کر کے آئیے, ذہنی آزمائش کا منچ ہے, تھوڑی آزمائش ہوگی, تھوڑی تیاری اور کیجئے. اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, یا جیسے ہمارے الیکٹرک انجینئر بھائی نے ایک الیکٹریشین کو پکڑ لیا تھا تیاری کرنے کے لیے, ذرا اور تیاری کر کے کراچی والے آئیں تاکہ پھر موقع ملے گا آپ کو. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. اور الحمدللہ یہ پروگرام آج آپ نے دیکھا ناظرین, ذہنی آزمائش ہمارے لیے بھی نیا ایکسپیرینس تھا. آپ اپنی ہمیں رائے بھی دیجیے گا, اپنے مشورے بھی دیجیے گا. اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے, انہیں صحت والی, عافیت والی, نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے مل کر ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے ہی دامن میں لو, اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا کروڑوں درود, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا اس میں ضیا دیجئے. جل جل قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहला एपिसोड देखा। अब आइए आपको बताते हैं कि जो अगले हफ्ते जो आप मुकाबला देखेंगे किस टीम के साथ है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइए महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है जिस दिन मैं ऐसे इल्म में इजाफा न कर सकूं जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे, उस दिन के रोशन होने में मेरे लिए कोई बरकत नहीं। गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते इल्म इरफा के